चलो शुरू हो जाए। तो टर्ड तो आपको समझ में आ गई बात है ना, टर्ड तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट सबको, सबको समझ में आ गया टर्ड वाला। यस सर। ओके, तो एक बार चेक कर लूं मैं, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेट मी चेक, लेट मी चेक आपका अप्रोच करेक्ट है क्या? व्हाट इज योर अप्रोच? व्हाट शुड बी द स्टेप्स यू शुड फॉलो? व्हाट शुड बी द स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो फॉर अल्काइल नेमिंग? ठीक है, ये देखो अल्काइल नेमिंग स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में लिखा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, दीज आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो फॉर अल्काइल नेमिंग, नॉट अल्केन, रिमेंबर दिस इज फॉर अल्काइल नेमिंग। So step one, always. Step one, write, sorry, I will write, count the carbons, count total carbons, count total carbons, and write alkyl. Correct, students? Write alkyl term. Which alkyl is it? Like for example, अपने को अभी क्या मिला? Pentyl. कैसे काउंटिंग किया? We counted 5 carbons and we came up to pentyl name, right? Next thing, students. Step 2. Identify nature of carbon. Identify nature of carbon having incomplete bond. Having incomplete bond. Is that understood, students? Is that understood? Identify the nature of carbon having incomplete bond. Step 3, decide the prefix. Correct, students? Step 3 में हमने क्या किया? Prefix हमने decide कर लिया. Take a screenshot. Take a screenshot. So these 3 steps we are going to follow. These 3 steps we are going to follow and I will help you. कोई टेंशन की बात ही नहीं है. I'm going to help you. Mehak, are you understanding everything, Mehak? यस सर। शाबाश, very good. कोई टेंशन की बात? Yes, Mehak, कोई टेंशन की बात है? नो सर। Very good, very good. Keep on enjoying and do let me if you have any kind of tension. कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. Same applies for Janitya also, Mansi also, Pravansh also, everyone. Priscilla, what about you? Understanding everything, Priscilla? यस Priscilla, सर। very good, शाबाश. चलो स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल एंड लेट मी टेस्ट अगर आप इसको सही समझ पाओ तो. ठीक है, चलो, दिस इज माय नेक्स्ट स्ट्रक्चर. CH3, CH3, CH3. Just to help you, this is my incomplete bond. Step 1, कोई मुझे आंसर नहीं देगा. Nobody will answer me. आपके बुक में स्ट्रक्चर बनाओ एंड स्टेप्स जो बोल रहा हूं वो फॉलो करो एंड देन फाइनल आंसर आपको चैट बॉक्स में भेजना है. ठीक है स्टूडेंट्स? Step 1, identify which alkyl is this. Step 1, students, identify which alkyl is this. Count the carbons and identify alkyl term. Count the carbons, identify alkyl term. Very good, Sahil. नहीं, Sahil, mistake है, spelling mistake, spelling mistake, spelling mistake. Well done, Adi Purav, that is right answer. Jyotika, right answer. Sakshi, right answer. Mansi, right answer. Aryan, right answer. नहीं, Aryan, wrong answer. Aryan, wrong answer. ब्यूटाइल। एक मिनट, नहीं, ऑडियो पे नहीं बोलना था आंसर, ऑडियो पे आंसर नहीं बोलना था. ओके, स्टेप 2, स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कार्बन. बॉक्स में डाल दिया उस कार्बन को, बॉक्स में डाल दिया तो वेरी गुड, बॉक्स में नहीं डाला तो वेरी बैड. स्टेप 2, बॉक्स द कार्बन विच इज हैविंग इनकम्प्लीट बॉन्ड एंड देन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दैट कार्बन. क्या नेचर है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी है या प्राइमरी है? सेकेंडरी है या प्राइमरी है, बताओ. Tertiary. Tertiary is Tertiary. wrong. Tertiary is wrong. Tertiary is wrong. It is not tertiary. How many of you say this Sir, is? it is tertiary. It is connected to three carbon. Sir, tertiary because it is directly connected to 3 carbons. बाप रे, मेरे से मिस्टेक क्यों हो गया पता है? मैंने बॉक्स ही नहीं ड्रॉ किया अब तक. चलो बॉक्स तो ड्रॉ करूं, वही तो सबसे बड़ा मिस्टेक है ना स्टूडेंट्स? बॉक्स ड्रॉ कर दिया, मुझे तो अभी भी लग रहा है दिस इज प्राइमरी, फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ. चलो, सो 1 2, अरे बाप रे 3. आई एम सो सॉरी, ये तो क्या है? ये तो है टर्शरी. कौन सा है स्टूडेंट्स? है
Tertiary. Very good. Tertiary. So nature is tertiary. When nature is tertiary, I don't have to worry about anything. I don't have to worry about anything. And prefix decide हो गया मेरा. What will be prefix, students? Tert. What will be prefix? Tert. Okay, it is tert butyl. Still I can see many students messaging me tert propyl. That is wrong answer. That is wrong answer. Propyl nahi hai ye. It is tert butyl, students. We have 4 carbons. We have 4 carbons. How can it be propyl? समझा? Propyl नहीं होगा. Swati, this won't be propyl. समझ में आया स्वाति बात? This is butyl. 4 carbons है ना स्वाति? Did you get the mistake? Yes, Swati, tell me. Yes, sir. Okay, shabash. Anybody else? You have any doubt, students? Please ask me. किसी को डाउट है अब तक? सब कुछ क्लियर है? Raise your hand. सब कुछ क्लियर है तो? Raise your hand if everything is clear up till now. क्या बात है? ये देखो इतने सारे लोग. सब कुछ clear. Everything clear. Very good. Very good. Very good. This is so amazing. Shabash. Well done, students. Well done. अच्छा, T small रहेगा या capital? T small बिग रहेगा. T small देखो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. किसी बुक में कैपिटल रहता है, किसी बुक्स में स्मॉल लिखते हैं. सो अभी के लिए यू कैन प्रिफर एनीथिंग. लेट मी गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स. आपके टेक्स्ट बुक्स में और भी क्या प्रेफरेंस है न्यू सिलेबस में, एनसीईआरटी में, तो उसके हिसाब से आई इन्फॉर्म यू लेटर. ठीक है? ओके, उसको भी देख लेंगे बाद. चलो, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं. पब्लिकेशन बुक्स में कहीं कैपिटल डी रहते हैं, कहीं स्मॉल पी रहते हैं, वो भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं. ओके, चलो यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाऊं. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं फटाफट से चलते हैं. चलो, दिस इज माय नेक्स्ट एग्जांपल. ये देखो CH3, ओके, CH2, then CH, then CH3. ओके, ये डैश मार दिया मैंने. CH3, CH2, CH3. Tell me the name of alkyl. Butyl. Tell me the name of alkyl. Butyl. Let me write the name first. है ना? आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है. Let me write down the name first. So ब्यूट लिख दिया मैंने, YL डाल दिया, ब्यूटाइल. ओके, ब्यूट लिख के YL डाल दिया, ब्यूटाइल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप क्या है? Box the. शाबाश. बॉक्स द कार्बन हैविंग इनकम्प्लीट बॉन्ड. आइडेंटिफाई द नेचर. नेचर क्या है स्टूडेंट्स? Secondary. वेरी गुड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ध्यान रहे. आप इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि अगर नेचर टर्शरी तो टर्ट ले लिया, नेचर सेकेंडरी तो सेक ले लिया. अगर ऐसा था तो हमारे पास एक और प्रीफिक्स आना चाहिए था, प्राइमरी के लिए. आया क्या अपने पास? है क्या अपने पास ऐसा प्रीफिक्स? नहीं सर. नहीं है ना. सो मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यू शुड नॉट डिसाइड द प्रीफिक्स. बहुत लोगों ने मुझे सेक ऑलरेडी भेज दिया. सेक आपका आंसर करेक्ट है, बट मैं आपसे एक मिस्टेक करवा लूंगा अभी. ठीक है? तो आपका कंफर्म एक मिस्टेक हो जाएगा. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भेजू ना, एक और क्वेश्चन इसमें डाल दूं अगर, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा. ये देखो, ये अगर मैं कर दूं ये, तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो सर पेंटाइल हो गया ना. आपका बात करेक्ट है, पेंटाइल हो गया. ये तो बात करेक्ट है, पेंटाइल हो गया. बट अभी नेचर क्या बताओ, सेकेंडरी की टर्शरी है? सेकेंडरी है. करेक्ट आंसर. इट इज सेकेंडरी. कैन आई यूज सेक? नो, आई कैन नॉट यूज सेक. आप बोलोगे अरे अभी भी सेकेंडरी है, तभी भी सेकेंडरी था, व्हाई आई कैन नॉट यूज सेक? सो देयर लाइज द इशू स्टूडेंट्स. वहीं पे तो इशू है. इसलिए हमको जल्दबाजी नहीं करनी है. ठीक है? और पहले समझना है कंसेप्ट को. तो कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? आप पूछोगे सर रूल्स बताओ. आपके पास रूल्स था, आपने हमको बताया नहीं, आपने चीटिंग किया. आप रूल्स बताने वाले थे, तो मैं रूल्स बता रहा हूं स्टूडेंट्स. रूल क्या है? व्हेन आई विल यूज सेक स्टूडेंट्स, व्हेन आई विल यूज सेक, आई विल यूज सेक ओनली इफ द कार्बन हैविंग इनकम्प्लीट बॉन्ड शुड बी सेकेंडरी. ध्यान से देखना. and the same carbon should be second carbon. It should be second carbon. check करो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? Is it secondary? Yes, sir. Yes. Yes, Is it sir. second in the chain?
Is it second Yes, sir. carbon in the chain? Yes, sir. तो पेंसिल से डबल टिक करो पहले Yes. उसको, पेंसिल से डबल टिक करो। अगर दोनों टिक आ गया तो ही मैं सेक यूज करूंगा। दोनों टिक आ गया स्टूडेंट्स? दोनों टिक आ गया क्या? Yes, sir. वेरी गुड। तो आंसर क्या हो गया इसका? सेक ब्यूटाइल। आंसर क्या हो गया? सेक ब्यूटाइल। वेल डन मानसी चलवाड़ी। It is sec butyl. Is that clear, students? Is that clear, students? Sec butyl. Yes, sir. Now try to identify, students. Screenshot पहले ले लो. Please take a screenshot. Please take a screenshot. Please take a screenshot. Yes. Any doubts? Please ask me, students. कोई डाउट है? सेकंड लास्ट होगा तो भी? हाँ, yes. किसी भी एंड से सेकंड हुआ चलेगा मुझे। सेकंड लास्ट हुआ तो भी चलेगा, सेकंड हुआ तो भी चलेगा। ओके, चलो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल दूं आपको। ये देखो, नाउ कैन यू यूज सेक? बताना मुझे। ये देखो। No, sir. No, sir. नो। क्या? देखो, अब अपन स्टेप फॉलो करेंगे। हम ऐसे रैंडमली आंसर्स नहीं देंगे, अपन स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, ये देखो अपन चलते, चलो एक एक करके स्टेप में चलते हैं। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। अप्रोच देखो, अपना अप्रोच करेक्ट होना चाहिए। अगर अपना अप्रोच करेक्ट है तो हर एक आंसर राइट जाएगा, हर आंसर राइट जाएगा। अप्रोच क्या होगा अपना? देयर आर 5 कार्बन्स, वेरी गुड। तो आई विल राइट पेंट, आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। मैं एक एक स्टेप फॉलो करूंगा। पेंटाइल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मुझे प्रॉमिस करना है आप हर एक स्टेप फॉलो करोगे, कोई जल्दबाजी अपन नहीं करेंगे। अगर अपन जल्दबाजी करेंगे तो आंसर रॉन्ग जाने के चांसेस हैं। इफ यू फॉलो एवरी स्टेप, हमारा आंसर 100% ऑफ टाइम करेक्ट जाएगा। ठीक है, पेंटाइल तो डन हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है? बॉक्स द कार्बन हैविंग इनकम्प्लीट बॉन्ड। चलो बॉक्स कर दिया, सर्कल कर दिया, जो भी करना है कल, आप जो फेवरेट शेप है वो कर लो। चलो ठीक है, बॉक्स कर दिया। नेचर पता लगा लो। चलो, सो व्हाट इज द नेचर? नेचर इज 1 2, 1 एंड 2। अरे वाह, ये तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी से काम नहीं चलेगा, इसको और भी क्या होना पड़ेगा? On the Second second. carbon in the chain. वेरी गुड। अगर स्टूडेंट्स अगर टर्शरी होता तो मैं टेंशन लेता क्या? थर्ड कार्बन भी होना चाहिए, सेकंड कार्बन भी होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन भी होना चाहिए। टेंशन लिया था No. क्या मैंने? नहीं, टेंशन नहीं लिया था मैंने। टर्शरी के लिए मुझे ये कंडीशन, बट सेकेंडरी के लिए दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी के लिए दो कंडीशन, सेकेंडरी के लिए दो कंडीशन। क्या कंडीशन है? शुड बी सेकेंडरी, शुड बी सेकेंड ऑल्सो। इज दिस सेकेंड? तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिखता हूँ। दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं सेकेंड लिख के उसको ऐसे क्रॉस कर देता हूँ जानबूझ के। ये देखो, ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। तो मैं उधर इनिशियली जब आप सीख रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके बुक में ऐसा दिखना चाहिए। इट इज सेकेंडरी बट इज नॉट सेकेंड। तो आपने क्रॉस किया तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, आई कैन नॉट यूज सेक, आई कैन नॉट यूज सेक। सो कोई बोलेगा तो इसका कॉमन नेम क्या है इस अल्काइल का? तो आप बोलोगे सॉरी, इट हैज नो कॉमन नेम, आई एम सो सॉरी, इट विल हैव नो कॉमन नेम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जल्दी से बता दो मुझे, इज दिस क्लियर? जल्दी से बता दो मुझे, इज दिस क्लियर? इज Yes, दिस sir. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया? टर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। डन स्टूडेंट्स? चलो डन, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ जाए। सो सेक तो आई एम श्योर सेक आपका क्लियर हो गया है। लेट अस गो टू प्राइमरी नाउ। ओके, प्राइमरी वाला कंफ्यूजिंग है, जिसको कॉमन नेमिंग आता है उसके लिए कंफ्यूजिंग नहीं है। ओके, कुलजीत आर यू देयर? कुलजीत, कुलजीत इज देयर? इज देयर और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर स्टूडेंट्स? कितने बच्चे हैं? गायब हो गए क्या? ओके, okay, 38, few students are missing. All right, chalo. Let us begin. Let us begin, students. ठीक है, let us begin. Let me find this boy. Kuljit, Kuljit, Kuljit कहाँ गया? Kuljit कहाँ गया? Kuljit is there or not? No, I cannot see him. I cannot see him. Okay, no problem. ठीक है, चलो, let us go ahead, students. So, my next question for you is CH3, CH2, CH, CH3,
CH2 and wait, एक एक करके चलते हैं. CH2 and dash CH3 CH2 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 and dash. Next CH3 CH3 CH2 and dash, and then I have CH3 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 CH2 CH2 and dash. चलो स्टूडेंट्स एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलो फर्स्ट वाला कंपाउंड चेक करो स्टूडेंट्स. फर्स्ट ब्लैक वाला कंपाउंड. टेल मी which alkyl. Step 1, which alkyl? Butyl. Butyl. Shabash. Alkyl, that is right answer. Butyl students. Let me write butyl first. चलो butyl लिख दिया मैंने. Step 2 क्या करूं? Step 2 क्या होगा students? Box the incomplete carbon. Blocks the carbon with the incomplete bond. Very good. ये देखो हो गया मेरा. Correct है? No, Wrong sir. है? Sir. Okay. Sir, last one from left. ओहो मिस्टेक कर दिया मैंने तो मिस्टेक कर दिया. ठीक है. अंडरस्टूड. ये वाला है ना? ये वाला करेक्ट है? Right side. No, sir. No, sir. Right hand side, last one. ओके ये भी रॉन्ग है. ओके ये वाला करेक्ट है. ये वाला करेक्ट है स्टूडेंट Yes, सर. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश. चलो so this is right. Very well identified students. Now what is the nature of this carbon? Primary. Primary. वेरी गुड. सो प्राइमरी के लिए स्टूडेंट्स रूल्स हैं. देखो प्राइमरी के लिए क्या रूल होते हैं? इफ इट इज स्ट्रेट चेन. वेरी गुड स्वाति. इफ इट इज स्ट्रेट चेन दिख रहा है स्टूडेंट्स? कहीं पे ब्रांचिंग दिख रही है? यहाँ पे देखो सीधा चेन है. No. है ना? 1 2 3 4. अगर नीचे आता 5 6 7 8 9 10 ऐसा भी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. सीधा जाना चाहिए. रिवर्स आपको ना लेना पड़े बस. ठीक है. 1 2 3. ये देखो ऐसा होता तो भी चलता स्टूडेंट्स. अगर ऐसा होता ना, ये देखो I'll write like this: CH2 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 CH3. Even this is straight chain students. Chemistry में straight chain है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 सारे कार्बन काउंट कर लिया मैंने बिना रिटर्न मारे, बिना यू टर्न लिए. Okay, Ayush, this is specially for you. Parth, this is specially for you. Prem, this is specially for you. Shonit, this is specially for you. For all new students. बाकी लोगों को आता है ये. बाकी लोगों को ये आता है. डेफिनेटली आएगा बाकी लोगों को ये. This is straight chain. ये देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7. मैथ्स के हिसाब से this is not a straight line. केमिस्ट्री के हिसाब से this is a straight line. बट मैं लाइन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट चेन. व्हाई? मैंने रिटर्न नहीं मारा, यू टर्न नहीं मारा किसी कार्बन को काउंट करने के लिए. अंडरस्टूड आयुष? अंडरस्टूड आयुष? वेरी गुड. सो दिस इज अ स्ट्रेट कार्बन चेन. दिस इज अ स्ट्रेट कार्बन चेन. Sonit, did you understand? Sonit, did you understand? Sonit, very good. Shabash, well done. Parth, what about you? Parth? Yes, sir. Prem, what about you? Prem? Yes, we have sir. two Parth. Parth भी हमारे पास दो हैं. Okay, इनमें से न्यू कमर कौन सा पार्थ है? रेज योर हैंड. न्यू कमर वाला पार्थ कौन है? ओके, व्हाट इज योर सरनेम? अच्छा दोनों पार्थ न्यू कमर है. आपने दोनों सेम नाम से ज्वाइन किया कि एक्चुअल दो पार्थ है अपने पास? एक PARTH है कि PARTTH? Okay, PARTH. What is your surname? PARTH. PARTH. What is your surname? Acha, you've messaged me. Parth Bagaria. Okay, and Parth Dabas. Okay, very good. दो नाम के बहुत सारे लोग हैं. बहुत कंफ्यूजन होने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम से क्या करना, आप सरनेम का एक फर्स्ट इनिशियल खाली यूज कर लेना. ठीक है, ताकि टीचर्स आपको अकॉर्डिंगली बुला पाए. ओके, अगर आपको लग रहा है आपके नाम का एक और स्टूडेंट है तो आप साथ में सरनेम का, जैसे मैं बोल पाऊं कि आयुष जी अगर लिखिए तो मैं समझ जाऊंगा आयुष जी. सो आयुष गुप्ता है ना.
और दूसरा सर भी मेरा आयुष भी को नाम अपना आयुष गुप्ता ही है। ये सरनेम भी कौन सा सेम है। चैलेंज है यार, ये कौन सा चैलेंज। ओके नो प्रॉब्लम। तो आयुष अब तेरे डैडी का फर्स्ट लेटर यूज कर, तो सपोज सर मेरे डैडी को का आप नाम आयुष गुप्ता बुला लेना, उसको सिर्फ आयुष बुला लेना। ओके ठीक है, चलो चलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्ट्रेट चेन। तो जब भी स्ट्रेट चेन रहेगा, व्हेनेवर इट इज स्ट्रेट चेन स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू यूज प्रीफिक्स स्मॉल लेटर n. ओके, स्मॉल लेटर n. वेल डन पार्ट बी, वेरी गुड। ओके, सो नेम क्या हो गया स्टूडेंट्स, n ब्यूटाइल. एम आई क्लियर विद दिस? इफ दिस इज स्ट्रेट चेन n ब्यूटाइल, वेट अपन ये ब्यूटाइल को वापस बना लेते हैं, हमने तो बड़ा सा चेन बना लिया था ना, चेंज कर लेते हैं, चलो ये आ गया n ब्यूटाइल. ठीक है स्टूडेंट्स, n ब्यूटाइल. इज दिस अंडरस्टूड? स्मॉल लेटर n ब्यूटाइल, n ब्यूटाइल. क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Next, let us move ahead. Next students, now this is very fixed structure दिखेगा देखो आपको. Next, हमेशा ऐसे याद रखो, देखो if it is primary, if the nature of carbon is primary, जिसका incomplete bond है, अगर उसका nature primary है तो तीन ऑप्शंस आते हैं. तीन ऑप्शंस आना चाहिए स्टूडेंट्स. सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इज इट अ स्ट्रेट चेन? अगर आंसर है यस तो इमीडिएटली एन लिख दो, बात खत्म. ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ. चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे, विच अल्काइल इज दिस? ब्लू वाला स्ट्रक्चर, विच अल्काइल? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इज राइट आंसर. ब्यूटाइल इज राइट आंसर. चलो लेट मी राइट ब्यूटाइल फर्स्ट. नाउ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल बिहेव एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, मुझे कुछ नहीं आता, मैं उस तरह से बिहेव करूंगा एंड यू पीपल विल हेल्प मी. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप बॉक्स टू. द इनकम्प्लीट। ओके, बॉक्स द कार्बन हैविंग इनकम्प्लीट बॉन्ड. बॉक्स द, पूरा स्टेटमेंट बोलना है, बॉक्स द कार्बन हैविंग इनकम्प्लीट बॉन्ड. बॉक्स कर दिया. चलो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन? प्राइमरी। Primary. वेरी गुड, बिकॉज इट इज अटैच्ड ओनली वन कार्बन. राइट स्टूडेंट्स, ये देखो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली. इट इज अटैच्ड ओनली विद दिस कार्बन डायरेक्टली, है ना. सो नेचर क्या हो गया इसका? प्राइमरी हो गया नेचर. करेक्ट है, नेचर इज प्राइमरी. नाउ इफ प्राइमरी नेचर है, मेरा पहला क्वेश्चन आता है, इज इट अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन? इज इट अ स्ट्रेट Branch चेन? Branch. ओके वेरी गुड. सो इट इज नॉट अ स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन तो नहीं है ना, तो कौन सा प्रीफिक्स आउट ऑफ पिक्चर? कौन सा आइसो प्रीफिक्स? और नियो। N. वेरी गुड. n is out of picture. n is out of picture. n पिक्चर में नहीं आता. Should I be confused about sec or tert? बताओ students. No. No, No. Why I should not be considering sec or tert? because it is a primary. Because it is Primary. primary. Very good students, because it is primary. So why to worry about sec or tert? Sec और tert का क्यों टेंशन लेना? ये तो प्राइमरी है. So sec और tert का क्यों टेंशन लेना? समझ में आ गया? sec तो गया, tert तो गया, n भी गया. sec भी गया, tert भी गया, n भी गया. गया. बचे कितने ऑप्शंस? दो. है ना स्टूडेंट्स? Very Iso good. and Neo. Very good. So now if on the second last carbon, please remember, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी अब सेकंड नहीं बोलेंगे, सिर्फ सेकंड लास्ट. So if on the second last carbon I have one methyl branch, if on the second last carbon I have one methyl branch, I will use the prefix iso. I will use the prefix iso. No dash in between. पूरा same word रहेगा, isobutyl. If only one methyl branch on the second last carbon students. या फिर ये वाला पैटर्न चेक करो, CH3 CH CH3, ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है क्या लास्ट में? CH3 CH CH3, तो it is iso. It is iso. Is this understood students? ठीक है. If I can see two methyl groups on the second last carbon, one नहीं two, one नहीं Neo. two, Neo. यूज करोगे नियो. चलो थर्ड वाले का नामिंग करते हैं. चलो सो थर्ड वाले का अल्काइल बताओ, कौन सा अल्काइल है ये? Hexyl. Hexyl, that is right Hexyl. answer. Hexyl. Very good students, very good students. Hexyl, shabash. And I'll use neohexyl. Why neo? Second last carbon has two methyl Two groups. methyl Two methyl branch. Second last carbon has two methyl groups. Very good. Understood students? समझ में आ गया ये किस्सा? समझ में आ गया ये किस्सा? सर Yes, sir. बॉक्स द इनकम्प्लीट बॉन्ड. हाँ अरे यस यस यस, हमने बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं किया. दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड. ये रहा दिस प्राइमरी. ओके वेरी गुड, ये तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा. वी विल हैव टू फॉलो दिस स्टूडेंट्स.
Is this clear? Yes. चलो. Yes. Okay, how many of you, आप में से किस किस को ये कंफ्यूजिंग लगा? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, बी वेरी फ्रैंक. किस किस को ये कंफ्यूजिंग लगा? अरे यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ भी नहीं समझ में आया. कंफ्यूजिंग लगा एंड समझ में भी नहीं आया. कंफ्यूजिंग लगा बट नहीं सर, समझ में आया समझा तो यू नो. समझा सर, एक शॉर्ट रिकैप दे दो ना फिर भी. हाँ, शॉर्ट रिकैप तो अपने को करना ही पड़ेगा, शॉर्ट रिकैप तो बनता है ना. अगर आपको स्टूडेंट्स, इफ इट वाज कंफ्यूजिंग एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, रेज योर हैंड, लेट मी सी. If it was confusing but you understood everything, then you don't have to raise your hand. Okay, sure. Chalo, let me do a recap, students. I hope you've taken the screenshot. I hope you've Sir. taken the screenshot. Yes, Ayush. नियोन में भी हाइफन आएगा साइड में, नियोन और नहीं बूटेन, नहीं नहीं बूटेन। नहीं नहीं Okay, नहीं, sir. नियो आइसो में नहीं आएगा. Okay. चलो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? लेट मी गिव अ रिकैप एंड देन आई विल कम टू द स्ट्रक्चर जो हमने जिससे लेक्चर चालू किया था, उस स्ट्रक्चर पे मैं आऊंगा, सेक प्रोफाइल वाले पे आऊंगा. अब आप आंसर दे दोगे उसका. ओके, सो लेट मी डू अ रिकैप क्विकली स्टूडेंट्स. रिकैप क्या है ये देखो, पूरा कुछ एक ही स्क्रीन पे, ऑन अ सिंगल स्क्रीन. आई विल ब्रिंग ऑल द रूल्स ऑन अ सिंगल स्क्रीन. ओके स्टूडेंट्स, सो नेमिंग, और आई विल राइट अल्काइल नेमिंग. ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल का नेमिंग, अल्काइल ग्रुप्स का नेमिंग सिस्टम. ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. चलो लेट अस बिगिन नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप स्टूडेंट्स. सो स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? Step 1 will be identify, sorry, you have to count total carbons, to get alkyl. Is this understood? That will be my step 1, count total carbons to get alkyl. Next students, box carbon with incomplete bond, box carbon with incomplete bond, and identify nature. Identify the nature students. चलो ये डन, ये समझ में आ गई बात. नाउ यहाँ पे कितने ऑप्शंस आ गए मेरे पास स्टूडेंट्स? कितने ऑप्शंस आ गए आप बताओ मुझे. We have 3 options now. If the nature is tertiary, students, if the nature is tertiary, then the prefix will be, यहाँ पे लिख दूं एक और चीज ब्रैकेट में, फॉर प्रीफिक्स, है ना. ये हम काम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर प्रीफिक्स, है ना. सो इफ द नेचर इज टर्शरी, देन द प्रीफिक्स विल बी टर्ट. ओके, क्या प्रीफिक्स अपन यूज करेंगे स्टूडेंट्स? प्रीफिक्स विल बी टर्ट. इज दिस क्लियर? जल्दी से मुझे बता दो. प्रीफिक्स विल बी टर्ट. sir. Then next students, next, if the nature is secondary, plus if it is second, है ना, if the nature is secondary plus if it is secondary plus second अगर दोनों है, if it is secondary plus second, wait, let me write down secondary properly. If it is secondary, sorry, I'll use green color. If it is secondary plus second, then मैं क्या use करूंगा students? Then I will use, very good, I will use sec. शाबाश, है ना. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किस्सा ले लेते हैं. चलो नेक्स्ट स्टोरी क्या है? इफ इट इज प्राइमरी स्टूडेंट्स, इफ इट इज प्राइमरी में तो आई हैव 3 ऑप्शंस, है ना. प्राइमरी में अपन क्या बोलेंगे? इफ इट इज प्राइमरी एंड इफ इट इज अ स्ट्रेट चेन, प्राइमरी एंड स्ट्रेट चेन, तो which prefix you will use students? Small letter n. Very good. If it is primary plus 1 methyl group on the second last carbon, Iso.
ये देखो मैं ऐसे लिखूं 1 मिथाइल, समझेगा आपको? इफ प्राइमरी है एंड 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप on the second last carbon, on second last, then I will use iso. Clear, students? I will use iso. And then students, then if it is primary, but if it is primary and it has 2 methyl groups, if it has 2 methyl groups on second last carbon, then I will use सर सेकंड नहीं चलेगा ना? second नहीं चलेगा, second last ही होना पड़ेगा, second नहीं चलेगा, ठीक है? It should be neo. Is that understood, students? Take a screenshot, take a screenshot, take a screenshot. चलो बताओ मुझे, समझ में आ गई यहां तक बातें? समझ में आ गई यहां तक बातें? Now tell me, how many of you are still confused? Go through this students and tell me if you are still confused. समझ में आया but अभी भी confusion Sir. है? Yes, yes. सर Please अगर ask. सेक का मतलब रूल नहीं काम कर रहा है तो हम कोई भी नाम नहीं देंगे क्या उसको? नहीं, कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं उसको हम, फिर उसको आयुपैक नेमिंग के हिसाब से ही नेमिंग कर सकते हैं, कॉमन नेमिंग तो नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? ओके सर। Okay. Yes, students, please tell me, is there anybody who is still confused? Can I expect a flowchart from all of you on this as a homework? Colorful flowchart मैं expect कर सकता हूँ आपसे? Yes, sir. है ना स्टूडेंट्स? ऐसा ये जो मैंने लिखा है, मेरे पास स्पेस कम है, आप इसको प्रॉपरली लिखो एंड एवरी रूल के नीचे एक एग्जांपल भी बना देना विथ नेम। जैसे टर्ट मैंने जहां लिखा है टर्ट, उसके नीचे यू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर, सपोज फॉर एग्जांपल टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो एंड वहां पे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करो, बॉक्स करो कार्बन को, लिखो टर्शरी एंड उसका नेम लिखो टर्ट ब्यूटाइल। समझा? तो सपोज एनी स्टूडेंट, अगर कोई वो स्टूडेंट वो फ्लोचार्ट देख रहा है तो उसको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। So every name, every prefix should have one structure at least. So total 5 structures you will have on this flowchart. Can I expect that? Sir, can we add examples separately from the flowchart? Yes. See, that is what I'm saying. Ki if it is on the same flowchart, it would be very good because I can easily correlate them. Understood, Prem? You can draw more examples, but then Yes, at least sir. one example अगर रहेगा तो I can correlate nicely कि yes. अभी देखो मैंने अभी तुझे पढ़ाया है ना, तो अभी तुझे समझ में आ रहा है, बट कोई अनजाना लड़का सपोज जिसने ये लेक्चर नहीं अटेंड किया, अगर वो प्रेम का फ्लो चार्ट देख रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा कि प्रेम किस बारे में बातें कर रहा है। अंडरस्टूड? अगर प्रेम ने प्रॉपर्ली ऐसे सर्कल मारा है, सी दिस इज 1 मिथाइल ऑन द सेकंड लास्ट कार्बन, 1 मिथाइल ब्रांच, एंड इसको बॉक्स करके प्रेम ने लिखा दिस इज प्राइमरी, तो ये रहा प्राइमरी, फिर बच्चा देखेगा ये रहा एक मिथाइल, वेरी गुड, प्राइमरी भी है मिथाइल भी है, आइसो चला गया, प्राइमरी भी लिखा है प्रेम ने और 2 मिथाइल को सर्कल किया है, ये नियो हो गया। सो फ्लोचार्ट से प्रॉपर्ली कनेक्ट करेगा एग्जांपल। अंडरस्टूड प्रेम? सो हमको एग्जांपल में भी कलरफुल तरीके से सर्कल भी करना है, लिखना भी है, सब कुछ लिखना है, मतलब पूरा स्पून फीडिंग करना है, पूरा स्पून फीडिंग। इफ यू वांट यू कैन यूज चार्ट पेपर आल्सो स्टूडेंट्स, ठीक है? हो सके तो ड्रॉ इट ऑन चार्ट पेपर या प्लेन पेपर पे, आपके नोटबुक वाले पेज पे मत बनाना वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा, प्लेन पेपर पे बनाना एंड मेक श्योर कि ये पूरा फ्लो चार्ट एक ही पेज में आ जाए, देन इट विल मेक सेंस। सो बड़ा सा पेज लो ताकि पूरा ऐसे कंजेशन ना हो, मेक इट, पहले पेंसिल से एक ट्राई मारो, पेंसिल से एकदम सिंपल बना के देखो कितना स्पेस कौन सा अपन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रफली एक प्रिपेयर करो एंड देन गो फॉर द फाइनल वन। वेरी कलरफुल, मेक इट एज कलरफुल एज पॉसिबल। जैसे मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं, वैसे आप सपोज प्राइमरी के लिए एक ही कलर रखो, सेकेंडरी के लिए एक अलग कलर रखो, टर्शियरी के लिए अलग कलर रखो, एंड बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो दोनों की, तो हम सेपरेट कर लेंगे सबको, ठीक है? Okay, students. Yes, So that will be homework for all of you. Before today evening, I want this flowchart in the group, and जो हमने examples लिए हैं, those examples also you can use. Other examples also you can quote. आपके हिसाब से भी you can draw examples. And students, बाकी ग्रुप्स में क्या हो रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बाकी ग्रुप्स में लोग ऐसे भी कर रहे हैं, like for example one student, उसने क्या किया था, उस स्टूडेंट ने 4 से 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए अल्काइल के एंड ग्रुप में डाल दिए, एंड उस बच्चे ने ये भी लिखा था कि दिस इज फॉर माई फ्रेंड्स, आंसर दिस इफ यू कैन, ऐसे लिख के डाल दिया उसने ग्रुप में, आंसर दिस इफ यू कैन।
सो बाकी बच्चों ने आंसर्स भेजना शुरू किया एंड इसने जस्टिफाई करना शुरू किया कि हाँ योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, योर सेकंड आंसर इज रॉन्ग, व्हाई इट इज रॉन्ग आई विल टेल यू, वेट फर्स्ट लेट मी वेट फॉर सम अदर टू राइट टू गिव राइट आंसर। फिर सपोज थर्ड बच्चे ने राइट आंसर दे दिया, सो उसने बोला हाँ योर आंसर इज करेक्ट फॉर द सेकंड वन। तो इस तरह से पीपल स्टार्टेड रिप्लाइंग टू हिज मैसेजेस इन द ग्रुप। ये सारा इंटरेक्शन कहाँ पे चल रहा है? ग्रुप पे चल रहा है। सो इससे ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इंटरैक्टिव होता है। सो यू कैन डू दैट फॉर योर ग्रुप ऑल्सो। Okay, that would make it more interactive, students. You can do that definitely. Any one of you. Suppose आपको लग रहा है कि yes I can. आपको ऐसा भी हो सकता है. Suppose अभी प्रेम ने suppose प्रेम has drawn 5 structures. प्रेम ने 5 questions डाल दिए ग्रुप में, ठीक है? Then निर्जला has seen those 5 structures. निर्जला को लग रहा है कि नहीं प्रेम का second structure is completely wrong. Second structure का नाम आ ही नहीं सकता. Because sec का second वाला rule apply नहीं हो रहा है इस पे. It is secondary, but it's not second. है ना? So निर्जला will make him realize कि प्रेम this is wrong, second का आंसर ही नहीं आएगा. So then प्रेम will, अरे हाँ यार. So उसमें किसने सीखा? प्रेम ने सीखा, right? It was lesson for प्रेम. And who made him realize this? निर्जला helped him. So निर्जला का भी revision हो गया. That is how you have to practice, students. So हर एक लेक्चर में अप्लाई करो ये. At least chemistry में you should apply. You should apply in chemistry at least. आपको क्या करना है students? आपको क्वेश्चंस फ्रेम कर करके आपको ग्रुप्स में भी डालने हैं. वो भी एक आइडिया है जो बाकी ग्रुप्स में फॉलो हो रहा है. नाउ इट इज ऑन यू एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप ग्रो होगे, अगर आप तभी ग्रो होने वाले हो जब आपके बैचमेट्स ग्रो होने वाले, क्योंकि आपको कंपटीशन नहीं रहेगा ना तो आप बोर हो जाओगे. तो जब आप ग्रो करोगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ में ग्रो करो. आज अगर पार्थ ने क्वेश्चंस डाले, कल आर्यन क्वेश्चंस डालेगा. मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आते आते एवरीडे अगर लोग 5-5, 10-10 स्ट्रक्चर डाल रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के आते आते तक आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे अल्काइल ग्रुप्स में. सो दैट इज हाउ यू आर ग्रोइंग एंड यू आर गिविंग challenges to your friends also. Okay, students? All right, so that's it. I'll end my session over there, students. Thank you very much. It was very interactive session today. I enjoyed it a lot. I hope all of you have also enjoyed this. I'm deleting Yes, this. I sir. hope you've taken this screenshot, students. I hope you've taken the screenshot. I'm deleting this now. And this lecture recording would be going on the YouTube also. So you can go through the lecture once again अगर आपको कोई भी confusion है तो. ठीक है? That's it from my side. Thank you very much. Only flowchart, yes, with examples actually. That's it. That's it. ठीक है? Okay, students. चलो, bye bye. Take care. Bye, sir.